Hello students, welcome back to your class. And now take your Gulmohar book. Okay? And now open your book. Open your book and go to the page number 111. Page number 111. And here is a very sweet and short poem. The poem is Sea Song. What is the poem? Sea Song. Sea means samudra, song means गीत, समुद्र का गीत या समुद्र का गाना. Okay? Now we will read this poem 2 times, and after that we will discuss about this poem. Okay, now start from here. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home. Put inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you'd find a nice big shell and hear it singing too. Okay, once again. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you'd find a nice big shell and hear it singing too. Okay? And now read the poem by singing. इसे हम थोड़ा सा गा के पढ़ते हैं. ओके, लेट स्टार्ट. आप भी मेरे साथ इसे गाते जाएंगे. ओके. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear. Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. From the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I was surprised and listened hard, but it was really true.
I wish you had a nice big shell and hear it singing too. I wish you find a nice big shell and hear it singing too. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised, I listened hard, but it was really true. I wish you'd find a nice big shell and hear it singing too, and hear it singing too. And now I will explain the sweet poem in Hindi. Okay, so listen carefully. Now let's start from here. I found a shell, a curly one. In this poem, the little girl has found a shell like this. Okay? What is the shell? The shell is a hard cover of some water animal, some sea animal. Okay? The shell is a hard cover of some sea animal or water animal or some others. Okay? ये एक तरह का शंख है. क्या है? शेल क्या है? एक तरह का शंख है, जिसे आप शंख भी कहते हैं. शंख या खोल. ओके, तो ये क्या है? शंख है. Then I found a shell, a curly one. The little girl said that the little girl was on the beach and there she found a shell. This is the shell was rounded at curly. शेल कैसा था? घुमावदार. शेल कैसा था? थोड़ा सा राउंडेड, घुमावदार. आपने शंख देखा है ना? शंख तो आप ज़रूर देखे होंगे, आपके घर पे या फिर पूजा पाठ में यूज़ होता है, तो आपने शंख देखा होगा. ओके, तो ये गर्ल जो है, इसे ये शंख समुद्र के किनारे मिलता है. शंख कहाँ मिलता है इस गर्ल को? छोटी सी बच्ची को कहाँ मिलता है शंख? समुद्र के किनारे. तो ये क्या करती है? उसे उठा लेती है. I found a shell. मैंने एक खोल पाया, एक आवरण पाया. A curly one, घुमावदार. जो कैसा है? घुमावदार, राउंडेड है. Lying on the sand. Lying means पड़ा हुआ या लेटा हुआ. Lying means लेटा हुआ. यहाँ पे ये क्या हुआ था? रेत पे पड़ा हुआ. On the sand. Sand means रेत. तो मुझे एक ऐसा खोल मिला, एक ऐसा आवरण मिला, हार्ड पार्ट मिला, जो कहाँ था? समुद्र के किनारे. कहाँ होता है? समुद्र के किनारे रेत पे. उसे समुद्र के किनारे रेत पे एक ये शेल मिला. I picked it up and took it home. मैंने इसे उठाया और घर ले गई. मैं इसे उठाई और घर ले गई. Cold inside my hand. The shell was cold because it was in the sand
शेल क्या था? ठंडा था, क्योंकि समुद्र के पानी से भीगा हुआ रेत पे दबा हुआ था, तो ये शेल ठंडा भी था। तो ये जब हाथ में ली तो इसका हाथ भी ठंडा हो गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, तो ये मेरे हाथ में ठंडा था। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन, मम्मी ने इसे देखा और तब शी हेल्ड इट टू माई ईयर, वह इसे मेरे कान पर लगाई। ठीक, यह इसे मेरे कान पे लगाई। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, और उस शेल से, उस शंख से, उस खोल से एक गीत निकला, एक गाना निकला। ठीक, एक गाना आया, उसमें से कुछ आवाज़ आई गाने जैसी। सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। सॉफ्ट एंड स्वीट मीन्स मीठा मधुर। ठीक है, धीमी सी आवाज़ जो बहुत मीठी थी और साफ थी। तो शेल से कैसी आवाज़ आई? धीमी, मधुर और बिल्कुल साफ ध्वनि उसे उस शेल से सुनाई दी, जैसे कि कोई मीठी ध्वनि में गीत गा रहा हो। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित थी। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित। ठीक, वो खुशी से आश्चर्यचकित थी कि ये क्या है, कैसी आवाज़ है, कितनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है। वो एकदम सरप्राइज थी। तो लड़की क्या थी? मैं बहुत सरप्राइज थी, मैं बहुत आश्चर्यचकित थी। आई लिसन्ड हार्ड, मैंने इसे बहुत ध्यान से सुना। जब वो आवाज़ को सुनी, धीमी सी आवाज़ को सुनी, फिर वो उसे बहुत ध्यान से सुनती है। लिसन हार्ड। ठीक, बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन यह सच में सही था, वास्तव में ये सही था। उसे पहले सरप्राइज हुआ कि ये क्या आवाज़ इस शेल से आ रही है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उससे सच में एहसास हुआ कि ये आवाज़ सच में उसी शेल से आ रही है। आई विश you'd find a nice big shell. I wish, ये लड़की विश करती है, प्रार्थना करती है, ऐसी आशा करती है कि ये शेल, ऐसा बड़ा शेल आप भी पाएँ। यानी ये प्रार्थना करती है कि ऐसा शेल, जो भी ये पोयम पढ़ रहा है वो कोई भी हो, उसे ये शेल ज़रूर मिले। एंड हियर इट सिंगिंग टू, और इसे गाते हुए भी सुने, और इस शेल को गाते हुए भी सुने। उसकी ऐसी इच्छा हुई कि जो हर कोई इस शेल को पाए, जो भी लकी वन है तो ये इस शेल को पाए और इसे सुने, क्योंकि इस शेल को पाके वो खुद को बहुत लकी समझती थी। इसलिए वो बहुत सरप्राइज और हैप्पी थी। ओके, नाउ हियर इज new words. Here is only one new word. Surprised. What is the word? Surprised. Surprised means आश्चर्यचकित, खुशी से आश्चर्य होना। ओके, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित, खुशी से चौंक जाना या सरप्राइज होना, खुश होना। जब किसी बात पे हमें यकीन ना हो और वो चीज़ वास्तव में वैसा होता है तो हम क्या होते हैं? सरप्राइज होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। नाउ इन दिस पोएम अ लिटिल गर्ल टॉक अबाउट अ seashell she found. इस पोएम में एक छोटी सी लड़की एक समुद्र के seashell, समुद्र से जो शेल मिला उसके बारे में वह बात करती है। सी फाउंड, उसने जो seashell पाया। ठीक, समुद्र का जो शेल, समुद्री शंख, इसे हम समुद्री शंख भी कह सकते हैं। तो ये इस पोयम में एक छोटी सी लड़की एक समुद्री शंख के बारे में बात कर रही है जो उसने पाया। When the girl
shows it to her mother. जब यह लड़की इसे अपनी माँ को दिखाती है, she hears the sound that is heard when we hold seashell to our ears. वह सुनती है उस साउंड को, उस आवाज़ को. she hears, वह उसे सुनाती है, उस आवाज़ को उसे सुनाती है कि जब हम अपने कानों पे ये समुद्री शंख को लगाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है. ठीक. She thinks it is like a song of the sea. वह सोचती है कि यह समुद्र के गीत जैसा है. वह ये बच्ची क्या सोचती है, छोटी सी गर्ल क्या सोचती है कि यह ऐसा लगता है कि ये शंख समुद्र का गीत गाता हो, समुद्र का गाना गाता हो. सो द टाइटल इज सी सॉन्ग. इसलिए इस शॉर्ट पोएम का जो टाइटल है वो सी सॉन्ग है, यानी समुद्र का गीत. ये समुद्र का गीत कहाँ से आता है? इसके शेल से. शेल से जो आवाज़ आती है तो इसे ऐसा फील होता है कि ये कोई सी सॉन्ग है, समुद्र का गीत है, क्योंकि इसे शेल समुद्र के किनारे मिला था. ओके. I hope you will enjoy this poem. Okay, read it and enjoy it. Okay, now goodbye.